جگو اور مگو دو بہت اچھے دوست ہیں۔ دونوں کے گھر لاہور بحریہ ٹاؤن میں موجود ہیں۔ دونوں بہت ہی امیر خاندان سے ہیں۔ ہر طرح کی آسائش موجود ہونے کے باوجود بھی دونوں کو حسرت ہی رہ جاتی ہے، ہم ایسا کیوں نہیں کرتے اور ویسا کیوں نہیں کرتے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا بات ہے بھائی، آج سارا دن گزر گیا، اسکول سے واپس آئے ہو تو باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ میں نے سوچا کال کر کے پوچھ لیتا ہوں۔ ہاں جگو، بس نکلنے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ خیریت تو ہے نا؟ ہاں یار، خیر ہی ہے۔ تم تو جانتے ہو ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، اس لیے سب ایک دوسرے کو پھول دیتے ہیں۔ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ پنکی کے لیے کچھ گفٹس لے لوں، اس طرح ویلنٹائن ڈے کا دن خالی نہیں گزرے گا۔ ہاں یار، پچھلا ویلنٹائن ڈے بھی ایسے ہی گزر گیا تھا۔ ہماری کلاس کا جو ڈکی ہے نا، اس نے اپنے گھر پارٹی رکھی تھی اور خوب ویلنٹائن ڈے منایا تھا، اور وہ ہے بھی غریب سا۔ اگر وہ منا سکتا ہے اور انجوائے کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ اچھا یار، میں فون بند کرتا ہوں۔ کل چاچے دتے کے ہوٹل پہ کڑک چائے بھی پیئیں گے اور کوئی پلان بھی بنائیں گے۔ دونوں نے فون رکھ دیا۔ رات کا ٹائم تھا، مگو نے اپنے اوپر کمبل اوڑھا اور جلد ہی نیند کے مزے لینے لگا۔ دوسرے دن شام کو چاچے دتے کے ہوٹل پہ دونوں نے کڑک چائے منگوائی اور پینے لگے۔ جگو، پھر سنا، کیا کرنا ہے بھائی؟ ویلنٹائن ڈے تو 14 فروری کو ہوتا ہے اور آج 12 فروری ہے، صرف ایک دن رہ گیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ہوٹل بک کروا لیتے ہیں، چلو میں بھی پنکی کو سرپرائز دے دوں گا۔ ہاں یار، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، کیونکہ گھر میں ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ تم کو پتا ہے نا ابا حضور کس قدر خلاف ہیں ان کاموں کے۔ میں چنکی سے بات کروں گا۔ ارے یار، پنکی آنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ ہاں، اسے کسی بہانے گھر بلا لینا اور شاپنگ پہ لے جانا۔ چل پھر کچھ کرتا ہوں۔ دونوں پھر سے خوش گپیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری باتیں چاچے دتے نے بھی سن لی ہیں۔ چاچے دتے نے جب ان کی باتیں سنی تو بہت پریشان ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ سیٹھ اکبر تو بہت ہی اچھا انسان ہے، مگر مگو تو سیٹھ اکبر کی ناک کٹوانے والا ہے۔ چاچے دتے نے سوچا شام کو جب ہوٹل بند کرے گا تو سیٹھ اکبر کے گھر جائے گا۔ چاچے دتے نے اپنی موٹر سائیکل نکالی اور سیٹھ اکبر کے گھر پہنچ گیا۔ او واہ جی واہ، آج تے کمال ہی ہو گیا جناب۔ اے چن پتہ نہیں آج کدھر سے ٹپک پڑا۔ سنا دتیا کی حال شال نے تیرے قسمیں بچپن دے دن یاد کروا دیتے نے۔ اب آ چل بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں۔ چاچا دتا اتنے دنوں کے بعد سیٹھ سے ملا تھا جو بچپن میں اکثر کھیلا کرتے تھے۔ آج جیسے سیٹھ نے دتے کا استقبال کیا تھا، دتے کا دل باغ باغ ہو گیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ سیٹھ اکبر کے پاس اسے جو خبر سنانے آیا ہے وہ بہت ہی شرمناک تھی۔ دونوں خوشگوار باتیں کر رہے تھے۔ چاچے دتے نے سوچا اب سیٹھ سے بات کر لی جائے، گھر بھی جانا ہے۔ سیٹھ اکبر ہمارے زمانے بڑے ہی بھلے تھے، ہر کوئی سچے دل کا مالک تھا۔ ہونتے او ماحول زمین پہ ہاتھ مارنے سے بھی نہیں لگتے۔ ہاں دتیا، زمانے تے بہت ہی سونے سی، اب تو سچ میں وہ حالات ہی نہیں رہے۔ ہاں جی سیٹھ اکبر، زمانے تو بے شک وہ پچھلے سونے والے نہیں رہے، لیکن اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا جی۔ ہاں دتیا، گلاں تے تیریاں ویسے ہی کھریاں نے، کی گل کوئی پریشانی والی بات ہے دتیا؟ ہے تے گل پریشانی والی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے بتاؤں۔
मेरे होटल पे अक्सर मग्गू आता है और साथ उसका दोस्त जग्गू भी होता है। बड़ी दोस्ती है दोनों दी, लेकिन काम दोनों पुट्ठे फे करने जा रहे हैं। खैर, चाचे दित्ते ने सारी सूरत हाल बताई और दोनों के प्लान्स भी बताए। सेठ अकबर बहुत समझदार इंसान था। दोनों के प्लान सुनकर इसने भी अपना एक प्लान बनाया और दोनों को राह रास्त पर लाने के लिए दोनों पे नजर रखी। जग्गू और मग्गू दोनों मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। दोनों का प्लान था कि जाके होटल बुक करवाएंगे और फिर अपनी कजन्स को फूल देंगे। रास्ते में जग्गू ने मग्गू से पूछा कि तुमने पिंकी को बताया है? नहीं यार, टाइम ही नहीं मिला। मैं आज शाम को बताऊंगा, देखना वो मान जाएगी। जग्गू और मग्गू होटल के रिसेप्शन पर गए और होटल का कमरा बुक करवाया और मेन्यू वगैरह भी सिलेक्ट किया। फिर जग्गू और मग्गू फूलों की दुकान पर गए और फूलों वाले से कल के लिए नए गुलदस्ते ऑर्डर किए। शाम को दोनों फिर से चाचे दित्ते के होटल पर चाय पी रहे थे। यार मग्गू, मैंने पिंकी को मैसेज किया है, लेकिन पिंकी ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। मैंने चिंकी को मैसेज किया तो चिंकी ने कहा कि कल स्कूल में इसका बायो का टेस्ट है और फिर एकेडमी में फिजिक्स का टेस्ट है। मैंने कहा शाम को आ जाना एकेडमी के बाद। कहने लगी देखूंगी। जग्गू, हम तो जब भी कुछ सोचें कि हम इंजॉय करेंगे, कोई ना कोई रोला निकल आता है। तुम चिंकी को कहो कल एकेडमी ना जाए। अच्छा, घर जाके बात करूंगा। तुम पिंकी का कुछ करो जो तुम्हें जवाब ही नहीं दे रही। चिंकी को मैं मना लूंगा। चाचा दित्ता, जो इनकी बातें बड़े गौर से कान लगा के सुन रहा था, खुश भी था और परेशान भी था। अच्छा है, सेठ अकबर दा प्लान कामयाब होने जा रहा है। सेठ अकबर ने मग्गू को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मग्गू सोहणिया, तेनों ते पता है अब तू वड्डा हो रहा और तुझ पे नजर रखना मेरा हक तो बनता है ना। आखिर बेटा है ना तू। जी जी बाबा, आपका पूरा हक है। आप मुझ पर नजर रख सकते हैं, इसमें भला बताने वाली कौन सी बात है। मग्गू, मेरा जमाने विच एक नाम है। हर कोई सेठ अकबर के नाम से चौंक जाता है। बस मग्गू, एक नसीहत मैं तुझे करूंगा कि प्यो दा नक न कटवाना, वरना सेठ अकबर का असली रूप तूने भी नहीं देखा है। जी बाबा जी। सेठ अकबर ने जब मग्गू को बात की तो सोचने लगे कि मग्गू लो मेरी बात से टस से मस भी नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि दित्ते ने इसे झूठ बोला हो। अगर दित्या तेरी गल 16 आने सच्ची हुई तो तू मेरा वैसे ही जिगरी यार रहेगा, और अगर ये बात ना हुई तो देख लेना हम दोनों लंगोटी यारों में फिक पै जानी है। 14 फरवरी का दिन आन पहुंचा था। क्लास में जग्गू और मग्गू दोनों टीचर की बातें गौर से सुन रहे थे कि टीचर ने कहा, अजीज तालबा इकराम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 14 फरवरी है। ये दिन गैर मुस्लिम का दिन है। गैर मुस्लिम इसे प्यार और मोहब्बत का दिन करार देते हैं। अरे जग्गू, ये टीचर क्या लेक्चर देने लग गए। अच्छा, तुम चुप करके सुन लो जो भी कहते हैं। हाँ यार, मर्जी तो हमने अपनी ही करनी है। आज के दिन लोग एक दूसरे को फूल देते हैं और पार्टियां देते हैं, जो कि हमारे दीन में हराम है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरत अल नूर आयत नंबर 19 में कहते हैं, याद रखो जो लोग चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैले, इनके लिए दुनिया आखिरत में दर्दनाक अजाब है। मोहब्बत गैर महरम से करना हराम है। ये दिलों की बीमारी का सबब बनता है। आप अल्लाह से दूर होना शुरू हो जाते हैं, माँ बाप के नाफरमान बन जाते हैं।
टीचर जी, आप हमें ये सब क्यों बता रहे हैं? आपको इसमें क्या इशू है कि मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ? नहीं टीचर, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। आप स्कूल में गलत और सही राह का तयन करने आए हैं, इसीलिए ये सब बातें आपको बताई जा रही हैं ताकि इस पुरफितना दौर में आप अच्छे इंसान बन सकें। टीचर का लहजा बहुत ही सख्त हो गया था। मग्गू अचानक से डर गया कि इससे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। अगर आप किसी की बेटी के साथ वैलेंटाइन डे मनाएंगे और गैरों का तरीका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बहन और आपकी बेटी पर भी दूसरे ऐसी ही नजर रखेंगे। अल्लाह ताला ने औरत को रुतबा से नवाजा है, वो वैलेंटाइन डे मनाने के लिए नहीं है। टीचर का लहजा देखकर जग्गू और मग्गू दोनों ही सहम चुके थे। ये बात इनके दिल पे लगी थी। जग्गू और मग्गू दोनों ही सोच में पड़ गए। क्लास में सन्नाटा छा गया था। टीचर क्लास से बाहर निकल गया, लेकिन उनके अल्फाज नक्श छोड़ गए। यार जग्गू, तुम्हारा दिल कर रहा है वैलेंटाइन डे मनाने को। ओ यार, मुझे चिंकी ने फिर से जवाब ही नहीं दिया। ये ना हो मैं इस हरकत की वजह से इसके दिल में नफरत पैदा कर बैठूं। हाँ, मुझे पिंकी ने कोई खास जवाब नहीं दिया। कहीं पिंकी बाबा को ना बता दे, वरना मेरे बाबा ने मेरी वाट लगा देनी है। हाँ यार, जो मेन्यू था ना, इसका ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, वरना अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे। हेलो, हाँ भाई होटल वाले, मग्गू ने आपके पास कोई होटल का कमरा तो नहीं बुक करवाया है? जी, जग्गू और मग्गू के नाम एक पार्टी मेन्यू है और हमारे होटल में बुकिंग है। टाइम क्या है जी? जग्गू और मग्गू ने कहा था हम कॉल करके बताएंगे, हम लेडीज के साथ आएंगे। दित्या, तेरियां रिपोर्टां सचियां ने। मग्गू को तो अब मैं सीधा करूंगा। पिंकी और चिंकी से तो बात हुई है, वो नहीं आएंगी अब। सेठ अकबर पहले ही होटल पहुंचा बैठा था। उसका दिल कर रहा था कि वैलेंटाइन डे को गोली मारते, और इतने में जग्गू और मग्गू भी आ जाते हैं। जग्गू यार, बाबा आए बैठे हैं, कहीं पे पता तो नहीं चल गया? अरे भाई, हम तो पार्टी कैंसिल करने आए हैं। अब हमने कौन सा वैलेंटाइन डे मनाना है? हम तो भाई अपनी बहनों और माओ वाले हैं। हाँ यार। जग्गू मग्गू, आप आ गए, क्या मेन्यू तैयार किया जाए? नहीं भाई, हमें कोई मेन्यू और बुकिंग नहीं चाहिए। मेन्यू की डिशेस किसी गरीब को दे देना। हाँ भाई, दसो तुम लोगों ने कौन सी बुकिंग करवाई थी यहाँ? बाबा, गलती से करवाई थी, दोस्तों का प्लान बना था, लेकिन अब कैंसिल हो गया है। हाँ भाई, बच्चों पर जब तक नजर ना रखें और स्कूल वालों को चुकन्ना ना करें, चिंकी और पिंकी को फोन करके ना दसो, ना गल करो ते तुसी रास्तबाजी ते ना आउंदे। सॉरी बाबा, मैं तो अपने दोस्त डकी को देख के लालच में आ गया था कि वो मना सकता है तो हम भी मना सकते हैं। अरे वो तो जाहिल होगा, तुम तो अच्छे भले मुसलमान हो। वो तो दित्या दी मेहरबानी कि उसने मुझे ये सारा पोल खोल सुनाया। और दित्या जैसे खरे दोस्त बनाओ ताकि सारी जिंदगी चंगे काम आ सको। अगर आप भी वैलेंटाइन डे मनाने का सोच रहे हैं तो रुक जाएं, ये बहुत गलत है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओ तो तू क्या नहीं। हाँ, शेयर करना ते लाइक करना ते बिल्कुल भी नहीं भूलना। ओ कमेंट जिया भी कर देना। अच्छा, कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। रब राखा जी। जज़ाकल्लाहु खैरा।